नो वो Good evening, बोलेंगे ना। everyone. Welcome to गुड Ganga इवनिंग। Jamani's Facebook Live series, and we call this Varsha Mangal. Although it's a Mangal day for one of my guests, and tomorrow it's a Mangal day for Mrs. Shaila Hashmi Grewal. Um, Abida ji, जी today is your फरमाइए। Independence Day. बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत शुक्रिया आपका, और आपको भी मुबारक हो कल के लिए। कल के लिए। जी बिल्कुल। आज हम लोग जी। एक बहुत यूनिक स्टोरी के साथ आए हैं, और हमारी जो यूनिक स्टोरी है वो 1947 में शुरू होती है, और एक्चुअली उसका जेनेसिस उससे भी पहले है। आज हम लोग दो सिस्टर्स जो डिवाइड हो गई एक बॉर्डर की वजह से, उनकी कहानी आपके सामने पेश कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम आबिदा सईद जी, who's actually Abida Hashmi Saeed, and Shehla Hashmi Grewal, who's talking to us from Gurgaon, and Abida ji is joining us from Karachi. So, good evening, ladies. Thank you so गुड much for इवनिंग। joining गुड us. It's इवनिंग। really going to be a fun discussion and a Yes, talk. Yeah. let's yes, let's carry it on. Yeah. yes. I actually want to play a short video before that, so that for the uninitiated or for the people who have joined us from, or my students for that matter, let's see if they can connect to the story better with this short video. India is to be broken apart, carved into two halves. The Union of India and the Dominion of Pakistan, which consists of half of the Punjab in the west and half of Bengal in the east, areas with predominantly Muslim populations. The announcement sparks widespread panic and speculation. Which parts of Punjab and Bengal would go to Pakistan and which would remain Indian? The fear psychosis created between Hindus, Muslims and Sikhs lead to violence and bloodshed as they try to protect their own territories. People start moving even before the actual partition is formally announced. The British barrister Sir Cyril Radcliffe, entrusted with the job of drawing the lines of partition, submits his report to Mountbatten. Mountbatten chooses to keep the report a secret until after independence, a decision that will go down in history as a colossal mistake. Quaid-e-Azam Jinnah declares Pakistan independent, leading the celebrations in Karachi on the 14th of August 1947. The next day, it was India that declared independence from the British Crown in front of thousands of exhilarated people. At the stroke of midnight, on the 15th of August, Nehru delivers his historic speech. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Finally, Mountbatten reveals the borderlines. The architects of their nations, Nehru and Jinnah, possibly never imagined the extent of the horror that was to come. All right, ये welcome back. I want to introduce the two of you, and I also want to share what is in common between the three of us. We are all educators, और हमने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में स्कूल के बच्चों को पढ़ाया है. So I'll begin with introducing Abida ji. Abida Hashmi Saeed, ये एक Montessorian है, और इनका स्कूल सीडलिंग मॉन्टेसरी जो है वो कराची में है, और इनको पढ़ाते हुए 1977 में मैम आपने ट्रेनिंग शुरू की थी. 77 में मैंने ट्रेनिंग ली और 78 से पढ़ाना शुरू कर दिया था। Wow. So that's एक 42 years. या क्वाइट अ और लॉन्ग टाइम। that's a long time. और शैला मैम, इनको सरदार पटेल के बच्चे सारे जानते हैं और बहुत बेहद मोहब्बत करते हैं इनसे,
और इनकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने बहुत साल पढ़ाया, फिर उसके बाद 42 की उम्र में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, व्हेन शी वाज 42 शी ट्रेन्ड टू बी अ सेरामिक आर्टिस्ट। तो वो पॉटरी सीखी और अब पॉटरी सिखाती हैं। So that is the other interesting bit that we have here. Very interesting, strong women educators, और I think ऐसे आप लोगों के जैसे रोल मॉडल सबको चाहिए। एक चीज और मैं बताना चाह रही थी जो हमें एक वीडियो में पता चला, आप लोगों की फैमिली जो थी वो कनेक्टेड है। आबिदा जी शहला जी की ताया जी की बेटी हैं, मतलब फादर्स ओल्डर ब्रदर्स डॉटर, Yeah. so they are first cousins in that sense, so they're sisters, and these are sisters who were divided because of a political border that was created in 1947. And overnight, I mean, there's so much that has been written about this, but overnight there was bloodshed, and overnight there was this sort of anxiety, and so much more communities that had lived together and coexisted for over a millennia started attacking each other, and there was this terrifying kind of outbreak of sectarian violence that was completely unprecedented. India mein kabhi aisa dekha hi nahi tha. So two new countries were formed. You had Pakistan and India. So let's begin this story. Who wants to take this first? I will, like, should I start, Api? जी, Yeah. शुरू कर दें। ऐसा है, ऐसा मैं समझती हूँ कि मैं 1945 के आसपास से ही शुरू करूंगी। हमारी फैमिली जो थी वो एक काफी पेट्रियोटिक फैमिली थी और सब लोग पॉलिटिकली एक्टिव थे। किसी का भी इरादा नहीं था कि हम अपना देश छोड़कर जाएंगे। उन दिनों बातचीत हो चुकी थी पार्टीशन होने की, एंड कोई सवाल ही नहीं था कि हमारा खानदान जो है वो हिंदुस्तान से बाहर जाने के ख्वाब देख रहा हो। सो हमारे दादा जो थे, हमारे दादा ने कहा था, अरे भाई मेरे तो बाप दादा की हड्डियां दिल्ली में गड़ी हुई हैं, मैं दिल्ली छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। सो अब हुआ ऐसे कि सडनली कम्युनल प्रॉब्लम जो है वो उठने लगे, क्योंकि इधर से भी लोग कट पिट के आ रहे थे, उधर भी जा रहे थे, और इस वजह से जाहिर बात है लोग जो थे वो तैश में थे, और इस तरह छोटी छोटी बातों पे फ्लेयर अप हो जाया करता था और लोग जो है वो मार काट पे उतर आया करते थे। तो हमारे ताया अब्बा जो है, आबिदा आपा के अप्पा, वो कनॉट प्लेस गए हुए थे, किसी हमारी बिजनेस थी फर्नीचर की, उसका काम के सिलसिले में गए थे। तो उनके ऊपर कुछ लोग जो आ रहे थे उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। तो समहाउ उनके एक दोस्त वहां पे जा रहे थे, उन्होंने उनको बचा के निकाल लिया और वो घर आए। सो उससे पहले भी गोला और आगजनी और ये सब कुछ हो रहा था। तो हमारे दादा जान जो इतने पुख्ता थे, हमारी दादी जान जो इतनी मजबूत थी, वो बिल्कुल ही घबरा गए कि यहाँ पे बच्चों की सेफ्टी नहीं है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। सो अब ये हुआ कि रातों रात भर मीटिंग हुई तीनों बेटों में, अब्बा अम्मा में, कि हम तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे तो खतरा है। सो सुबह तक सामान बंध चुका था और सब लोग जाने के लिए तैयार थे। हमारे अब्बा हनीफ हाशमी ने कहा कि मैं नहीं जाने वाला, मैं हिंदुस्तान से नहीं जाऊंगा। He was just 25-year-old boy. He was politically also active and he was looking after the furniture business, जो हमारे दादा की बिजनेस चाबीगंज कश्मीरी गेट पे हुआ करती थी। तो इससे पहले एक और बात मैं समझती हूँ कि वो भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने हम दोनों खानदानों की जिंदगी को बहुत ज्यादा बदला। तो एक साहब हुआ करते थे हमारे अम्मा के भाई, असगर अली अब्बासी। असगर अली अब्बासी जो थे वो उन दिनों 45, 46, 47 में वो कश्मीरी गेट पॉलिटेक्निक के अंदर इंग्लिश के लेक्चरर हुआ करते थे। सो वो तीमारपुर में उनको घर मिला हुआ था, वो तीमारपुर में रहा करते थे। अब हुआ ये कि वहां पे आसपास के इलाके में कहीं बम ब्लास्ट हुआ। तो वहां पे जो लोग थे, जो बड़े बहुत प्यार करते थे हमारे मामू को और बहुत संभाल के रखा हुआ था उन टेंशन के दिनों में, उन्होंने कहा कि अब्बासी साहब आप यहाँ से अब निकल ले, क्योंकि हालात जो है वो काबू में अब नहीं है। सो हमारे मामू ने
पाकिस्तान जाने का फैसला पहले से कर रखा था, तो उनका सामान वामान स्टेशन जा चुका था। तो अब वो बैठे तांगे में थे या बस में, ये मुझे ध्यान नहीं क्या था वो, और वो सब खानदान जिसमें हमारे मामू थे, हमारी मोमानी थी, उनके 2 बच्चे थे, हमारे नाना थे, नानी थी, हमारी अम्मा थी, मासी थी, और इतना बड़ा सारा खानदान चला तिमारपुर से निकल के, एंड दे रीच्ड कश्मीरी गेट। नाउ कश्मीरी गेट जब तक पहुंचे वहां पे कर्फ्यू लग चुका था, and as a result they had to get down from the transport and they were standing and they didn't know what to do because शाम हो रही थी इस टाइम। now जैसे एक खुदा का करना होता है वैसे ही उस वक्त हुआ, और हमारे चाचा हमीद जो है, वो हमारी जो फर्नीचर की दुकान थी चाबीगंज बड़ा बाजार में, उसको बंद करते हुए वो घर की तरफ आ रहे थे। अब उन्होंने देखा कि तिकोना पार्क में अब्बासी साहब और उनका सारा खानदान हक्का बक्का हैरान परेशान जोले थैले लेके खड़े हैं। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, आप यहाँ कैसे खड़े हैं? तो उन्होंने कहा ऐसा हुआ, और अब हमें पता नहीं, हम दिल्ली सोच रहे थे जाएंगे, हमारा कोई दोस्त रहता था, हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो हमारे चाचा ने कहा कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरा घर बिल्कुल पास है, हमारे घर चलिए। तो पूरा अब्बासी खानदान हमारे घर आ गया और 1 हफ्ता वो लोग वहां रहे। उसके बाद वो किस्सा हुआ कि जब हमारे ताया जी के ऊपर कनॉट प्लेस में हमला हुआ, सो रातों रात इन सब लोगों ने फैसला किया कि ये पाकिस्तान जाएंगे। सो सामान बंधा और सुबह ये लोग निकल के पुराना किला रिफ्यूजी कैंप में पहुंच गए। नाउ वहां पे रिफ्यूजी कैंप में तो हमारा खानदान, हमारे दादा का खानदान था और हमारे नाना का खानदान था सारा। तो हमारे दादा की साइड जो थी, उन लोगों ने एक शायद प्लेन, आप इसमें ऐड करेंगी अगर मैं कुछ गलत बता रही हूँ, तो उन्होंने एक प्लेन चार्टर किया और वो लोग पाकिस्तान लाहौर जाने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हमारे मामू का जो बड़ा खानदान था, they were not in a position to travel, so they decided to stay at the camp. So हमारे दादा की फैमिली जो थी वो माइग्रेट कर गई and they reached लाहौर, and हमारी नानी का जो परिवार था वो कैंप में, पुराना किला कैंप में रह गया। अब वहां से क्या हुआ कि उस जमाने में किस कदर अफरा तफरी मच रही होगी कि हुआ ये कि उन्होंने टिकट बुक कराए ट्रेन के, और एक दिन वो उसके पास ही वहां पे निजामुद्दीन का रेलवे स्टेशन है, वहां से उनकी गाड़ी जानी थी, वहां पहुंचे तो इतनी मारधार थी रेलों के ऊपर कि बूढ़े माँ बाप के साथ हमारे नाना नानी जो थे और पूरा खानदान वो ट्रेन में नहीं बैठ सके। सो एज ए रिजल्ट दे डिसाइडेड टू गो बैक टू पुराना किला। नाउ देयर वाज अ कानून कि once any person leaves the boundary wall of the Purana Qila camp, they will not enter again. So अब क्या करें, अब फिर दोबारा बूढ़े पेरेंट्स और पूरा खानदान और बच्चे सड़क पे थे। So they got to know about the Humayun's tomb refugee camp. They moved there, and as the things will happen there, they stayed till mid-November. So अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मिड नवंबर तक बूढ़े नाना, बूढ़ी नानी, छोटे छोटे बच्चे, बीमारियां, पेट की बीमारियां, पता नहीं क्या 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 उन लोगों ने झेला। टेंट्स के अंदर से पानी जाता था, खाने का सामान, टॉयलेट्स कहाँ होते थे, जवान लड़कियां थी उन्हें कहाँ जाना था, बुरी हालत थी। पूरी अफरा तफरी का जो माहौल था वो था वहां पे, जिसमें वो लोग रहे। एंड अल्टीमेटली अराउंड 15th और 16th of November फाइनली दे गॉट अ ट्रेन। ट्रेन की अलग कहानी है, वो कभी और सुनाऊंगी। सो उसमें वो बैठे और वो लाहौर पहुंचे। सो अब आबिदा आपा तो उस समय थी, बहुत छोटी थी, लेकिन हम लोगों के, हमारे अम्मा अब्बा की शादी बाद में हुई थी। तो आई थिंक वहां जाके आबिदा आपा के खानदान के साथ क्या हुआ, आई थिंक शी विल कैरी ऑन फ्रॉम हियर। आपी या अच्छा, मैंने बहरहाल कहानी कुछ और सुन रखी है, लेकिन तुमने बता दी तो ये अब मैं वहीं से शुरू करती हूँ। ये जब ये लोग लाहौर पहुंचे तो
जाहिर है इनको ट्रेन से जाना था, जो मिस हो गई थी। हमारे अम्मा अब्बा को भी ट्रेन से ही जाना अच्छा, था, लेकिन वो मिस हो गई थी, तो उसके बाद अच्छा। वो बाय प्लेन गए। तो ओके, जब ओके। हाँ, वहां पे जो उनके दोस्त थे जिनको रिसीव करना था लाहौर में, वो बेचारे ढूंढते रहे प्लेटफॉर्म पे कि कोई वो तो जाहिर है वो कट गई थी, राइट। लाशें पड़ी हुई थी। तो वो लोग बेचारे चादरें उठा उठा के देखते रहे कि भाई शायद कहीं अनीस की किसी में झलक नजर आ जाए, किसी आदमी में, किसी बच्चे में, किसी में, तो वो हो जाए। लेकिन ये कि वो बहरहाल उस दिन तो गए नहीं थे वो, क्योंकि ट्रेन मिस हो चुकी थी। फिर बहरहाल उन्होंने जो जो थे, अब्दुल्ला मालिक थे इनके एक दोस्त, जो इनको रिसीव करने के लिए गए थे, तो वो वापस आ गए। और फिर उन्हें पता चला कि भाई ये लोग तो आए ही नहीं है। तो 2-3 दिन के बाद फिर बाय एयर जब ये लोग पहुंचे, तो उन्होंने उनको एयरपोर्ट से जहाँ से भी लेना था वो, क्योंकि वो उसका तो नॉर्मल जहाज तो था नहीं, वो मेरे ख्याल से फौजियों का जहाज होता था, वो जो लेके जा रहा होता था सवारियों को। तो वो जब वो लाहौर पहुंचे, तो फिर बहुत दिनों तक तो हम अब्दुल्ला मलिक के यहाँ ठहरे, जो अब्बू जी के दोस्त थे, वो भी जर्नलिस्ट थे। और फिर उसके बाद उन्होंने, अब्दुल्ला मलिक ने गवर्नमेंट से सबको, जो लोग लुट पिट के आ रहे थे हिंदुस्तान से, उनको मकान वकान दे रही थी छोटे छोटे से। तो एक मैकलोड रोड पे एक बहुत बड़ी कोठी थी, और उसमें 2-2 3-3 कमरे उन्होंने डिवाइड कर दिए थे हर फैमिली के लिए। बहुत सारी फैमिलीज उसमें आके बस गई थी। फिर तो उसी में हमें भी 2-3 कमरे मिल गए थे, हम वहाँ पे ठहरने लगे। बस फिर बहुत दिनों तक हम वहीं ठहरते रहे। ना हमारे पास खाना पकाने के लिए बर्तन थे, कुछ था, तो अब्दुल्ला मालिक यहाँ से खाना आता रहा, वो होता रहा, इस तरह से जिंदगी गुजरती गई। फिर उसके बाद बस ऐसे ही जिंदगी गुजरती रही, ना किसी के पास नौकरी थी ना कुछ था। लेकिन ये था कि तुम्हारे मामू जो थे, हमारे मामू जो थे, वो क्योंकि सरकारी नौकर थे, तो जाहिर है सरकार में उनके जानने वाले थे। फिर हमारी दादी बहुत इन्फ्लुएंशियल थी, क्योंकि वो पॉलिटिकल वर्कर थी, तो उनके भी बहुत जानने वाले थे। वो उन्होंने किसी सूरत से का बिजनेस थोड़ा बहुत स्टैब्लिश कर लिया, और उनको ऑर्डर्स मिल गए मेज कुर्सियां बनाने के, गवर्नमेंट दफातर के। फिर वो वहाँ पे वो करने लगे, और इस तरह से गाड़ी चल पड़ी। और अब्बू जी जो थे इनको, अब्बू जी को और मैया ने सबसे पहले नौकरी जो थी वो रेलवे स्टेशन पे की थी। मैया ये चाचा जान को बोल रही है, हमारे चाचा जो हाँ, थे उन्हें मैया सबसे बोलती है। हाँ। हाँ, सबसे छोटे चाचा जो थे हमारे, उन्होंने उन्होंने सबसे पहली जो नौकरी की थी पाकिस्तान में, वो लाशें उठाने की थी। क्योंकि जो वो कट जाती थी अपनी ट्रेनें, और वो वाले वहाँ पे लाशें पड़ी रहती थी, तो उनको उठा उठा के दफनाने का और इसका इसका काम किया उन्होंने। और अब्बू जी ने एक अखबार में, पाकिस्तान टाइम्स में काम करना शुरू कर दिया था। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा काम शुरू हो गया। और तुम्हें तो पता ही है कि सारा घर जो था वो पॉलिटिकल था। दादी भी पॉलिटिकल थी, चचा भी पॉलिटिकल काम करते थे, वालिद भी पॉलिटिकल काम करते थे, और सिर्फ एक दादा जान थे जो बेचारे अपना खामोशी से कारोबार संभालते थे। एक घर चलता रहा है। अभी आपको अच्छा, हाँ, आप कुछ कह रही है शगुफ्ता? नहीं नहीं नहीं, आबिदा जी कुछ कह रही थी, आप प्लीज अपना खत्म कीजिएगा अपनी बात।
जी, तो बस मैं वही कह रही थी कि हमारे दादा जो थे वो अपना कारोबार उन्होंने चलाना शुरू कर दिया, तो इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता घर की रेलगाड़ी चलने लगी। जी और हम समझने लगे कि बस अब हम एस्टैब्लिश हो जाएँगे, हमें मकान मिल गया था। और जो वहाँ पे हालाँकि बर्तन नहीं थे, सोने की जगह नहीं थी। अ, पता नहीं, अब मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि हो सकता है वहाँ पे ऊपर भी कोई जगह ना हो, क्योंकि ऊपर की जो जगह थी, वो ऐसी टेम्परेरी बनी हुई थी। उसपे साइबान पड़ा हुआ है, वो उसको उन्होंने बावर्ची खाना बना लिया था। सिर्फ नीचे 2 कमरे थे। तो वो बाद में बनता रहा होगा, जो मुझे तो अंदाज़ा नहीं है बिल्कुल भी इस बात का, क्योंकि मैं तो सिर्फ 2 साल की थी जब वहाँ ले जाई गई थी। तो तो फिर बस आपकी आंटी, आपकी आपकी पैदाइश 47 से पहले की है ना, 2 साल पहले की? 45। जी हाँ, जी हाँ। 45। ठीक है। एक्चुअली बिफोर वी गो एनी फर्दर, आई वुड लाइक टू शेयर my some photographs that we have of the Hashmi family. May I please? यस या प्लीज। प्लीज गो अहेड। या So this is the Hashmi family tree that I have sort of put together. This is a collage, and we're going to come to this. The story begins here. Would you both like to comment as we go? यार ये या दिस हमारे इज वन ऑफ द मोस्ट दादा एंड दादी, हाँ, दादी और चचा हमारे अब्बा हैं, फादर। हाँ चचा अब्बा हैं, बीच में अब्बू हैं, और इस हाँ, तरफ हमीद हाशमी हैं, राइट में सबसे छोटे चचे। हमारे अब्बू, हाँ, और इधर चचा, बीच में ताया। या Okay, हमारे, मैं I दादा would के like बारे में एक बात बताती हूँ। दादा के बारे जी में, हमारे दादा जो है, वो सुना ये है कि बड़े फैशनेबल इंसान थे, और वो बड़े फैशन की पतलून और कुर्ता लेके पहन के, अपनी जैकेट पहन के अपनी वाइफ के साथ स्टूडियो जाके तस्वीर खिंचवाया करते थे, जो उस जमाने में बड़ी अनहोनी बात थी कि अपनी बेगम को लेके तस्वीर खिंचवाने जा रहे हैं। लेकिन हमारे आप दादा शौकीन इंसान हुआ करते थे, और बड़े ना पता है, शौकीन थे। जब वे हिंदुस्तान में ही रहते थे, तो ये हाँ, कोई कौन सा बाग था पता नहीं, उसमें सैर कुत्सियाबाग। हाँ, कुत्सिया बाग में ये लोग पिकनिक मनाने जाते थे। मेरी अम्मी हाँ हाँ हाँ, बड़ी दादी अम्मा। जान, हाँ और दादा लेके हाँ जाया करते थे। तो ये क्या करते थे वापसी, अच्छा ये दोनों खवातीन जो थी बुर्का ओढ़ा करती थी, जाहिर है उस जमाने हाँ, में। दिस दे यूज्ड टू गो तो टू जमुना किनारा। जमुना हाँ, किनारा जाते थे, वहां पे होता था तो ये। हाँ हाँ, तो क्या करते थे ये वहां पे वो दरी वरी बिछा के खूब पिकनिक मना के सब करके, और जब जाने का वक्त होता था तो जल्दी जल्दी से दरी वरी समेट समाट अपने बगल में दबा और भाग लेते थे। वो चीखती रहती थी, भाई बुर्के बुर्के बुर्के, और वो सुनते ही नहीं थे कि बुर्का भी पहनाना है बीवी को। और फिर घर तक उनको बगैर बुर्के के लेके आते थे दोनों खवातीन को। ये हमारी दादी बड़े मजे से किस्सा सुनाती हैं दादा जान का। yes, अच्छा, शेड सम लाइट ऑन दिस। आप लोगों का खानदान पहले कहाँ का है? ओरिजिनली आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? या आई टेक दिस स्टोरी, आई टेक दिस हाँ, स्टोरी। सी, कहानी तो काफी लंबी कहानी है, बट आई थिंक इट इज नेसेसरी फॉर मी टू नरेट इट। ऐसा जो सुनने में आया है, जो मैंने जिस तरह रिसर्च किया है, इससे जो मुझे मटेरियल मिला है, कि अकबर के जमाने में कुछ लोगों को अरब से कश्मीर बुलाया गया था, कुछ उलेमास को। सो वो कुछ वक्त कश्मीर में रहे, और एक आध जनरेशन या वट एवर इट मस्ट हैव बीन, एंड देन शाहजहां के वक्त वो खानदान जो था वो आगरा आ गया, और आगरा से वो खानदान अल्टीमेटली दिल्ली पहुंचा। अब दिल्ली में जो लोग दिल्ली को अच्छी तरह से जानते हैं वो ये समझेंगे कि अगर हम दिल्ली गेट से घुसे और लाल किले की तरफ जाएं, तो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ पहले लोहे का पुल हुआ करता था, वहां पे एक जगह होती थी, एक तो मस्जिद हुआ करती थी, उसको बोलते थे अकबराबादी मस्जिद, और एक वो जगह हुआ करती थी, उसको बोलते थे कश्मीरी कटरा। सो वो लोग जब वहां से आए, कश्मीर से आए और आगरा से आके, सो दे सेटल डाउन इन दैट एरिया, और उस इलाके को कश्मीरी कटरा कहा जाने लगा। कश्मीरी कटरे में पहले से ऑल्सो
कुछ कश्मीरी ताजिर व्यापारी जो है वो भी वहां रहा करते थे। सो ये लोग जो थे, अब हम समझते हैं कि हो सकता है कि ये लोग कश्मीरी हो हमारे पुरखे, हो सकता है ये मुगल रहे हो सकता है कि ये कश्मीरियों और मुगलों का जो ऑफस्प्रिंग्स हो उसमें से हमारा हमारा लिंक जाता हो। लेकिन इस तरह से तो हर जगह इतनी इंटरमिक्सिंग हुई है कि कोई अपने आप को प्योर या कुछ कहने का ना तो कोई मतलब है और ना ही उसको कुछ ढूंढा जा सकता है मेरे ख्याल से। सो हमारे जो परदादा थे, हमारे जो परदादा थे, उनका नाम था हजरत हाफिज मोहम्मद नवाब मिर्जा तारकश। तारकश मतलब तारकशी का काम, लोहे का, उसका सोने का तार जो है वो बनाया जाता था और उसका उससे वो अपना रोजी रोटी कमाया करते थे। तो ये हमारे दादा थे। फिर उनको क्या हुआ था कि इन मुगल उसके अंदर कोर्ट में उनको खिताब दिया गया था, मोहम्मद नवाब मिर्जा का खिताब जो है उन्हें वो मुगल उसमें मिला था। सो ये हमारे पुरखों की कुछ कहानी जो है इस तरह से रही थी। लेकिन फिर हुआ ये कि एक और चीज इसके अंदर आती है कि 1857 में जब गदर हुआ था, 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो हिंदुस्तानी जो थे वो अंग्रेजों से हार गए थे। उस वक्त बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने ये फैसला किया था कि हम अंग्रेजों की पढ़ाई नहीं करेंगे और हम अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेंगे। तो उनके पुरखों में हमारे पुरखों में वो लोग भी थे जिन्होंने ये कसम खाई थी कि हम अंग्रेजी शिक्षा और हम अंग्रेजी नौकरियां नहीं लेंगे। इसी के चलते हुए हमारे परदादा ने कोई नौकरी लेने के बदले, उन्हें एक मस्जिद हुआ करती थी जीनतुल मसाजिद, वो भी दरियागंज में है, वहां पे इन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इमामत करते थे, इमामत का मतलब अजान देना, नमाज का ख्याल रखना, ये करना, वो सब किया करते थे। और उसके साथ वहां बच्चों से वो पढ़ा करते थे, तो पढ़ाया करते थे बच्चों को। सो ये जो हमारी फैमिली में एक वो था फाइटिंग स्पिरिट, आई थिंक दैट is quite from few generations before that everybody wanted to fight for independence of our country, and they were quite determined to what they wanted to do as citizens of the country and how they want to live their life. So this I wanted to tell. And another thing now I would like to proceed on this, that jab partition hua tab हमारे अब्बू नहीं गए बाकी परिवार के साथ, वो यहीं रहे। एंड हमारी अम्मा, जो मैंने बताया कि पार्टीशन से थोड़े समय पहले दे वर टुगेदर इन चाबीगंज हाउस। सो उस समय दे वर ऑल दीज यंग बॉयज एंड गर्ल्स, दे मेट एंड दे स्टेड टुगेदर। सो उसी वक्त आई थिंक कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी खानदानों में, परिवारों में, कि हनीफ और कमर की शादी की जाए। सो बट हमारी अम्मा पार्टीशन के बाद चली जाती है लाहौर। एंड उनके फादर की, क्योंकि बहुत बीमार हो चुके थे तो कैंप में उनके फादर की डेथ हो जाती है। और उसके 1-1.5 साल के बाद वहां पे काफी उन्होंने मुश्किलें उठाई, यानी सिलाई का काम किया, बच्चों को पढ़ाया, ट्यूशन किया, ये करके अपने उन्होंने मदर को और अपने फादर का देखभाल किया। एंड देन इन 1949 February, Qamar Azad, my mother, Amma ji, comes to Delhi. And from other side, my dadi comes to Delhi, and Hanif and Qamar, my mother and father, they are married in Chabiganj, and they started their life this way. So they were they saw the partition, they experienced the aftermaths of partition, and they came back and they got together and they married and they started their life like that. Api, now you want to say something? Yeah. After that, Yeah. So I what will was happening? हाँ, मैं कह रही हूँ इस समय आप लोग क्या कर रहे थे वहां पे शुरू, जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस? आप लोग किस तरह से, आप लोगों ने किस किस तरह से काम करना शुरू किया वहां पे, पढ़ाई लिखाई वगैरह? अच्छा, मैं तो बहुत छोटी थी, मेरा तो दाखिला नहीं हुआ था। बाजी और आका भाई स्कूल जाया करते थे दोनों, और वो पढ़ते रहे।
और मैं फिर चचा अब्बा की और कमर फूफो की शादी में आ गई थी। जब उन लोगों की शादी हो गई तो फिर मैं वापस गई। वहाँ से फिर मैं कोई मेरे ख्याल से 4 या 5 साल की थी जब मेरा दाखिला हुआ था स्कूल में। उसी स्कूल में हो गया जहाँ बाजी भाई और आका भाई पढ़ते थे। तो बस हम लोग वहाँ पे पढ़ते रहे। फिर हम गए कराची। फिर अम्मा जी का इंतकाल हो गया था 53 में, हमारी दादी का Yes. 53 में इंतकाल हो गया। तो फिर अच्छा, उससे पहले अम्मी और अब्बू हमारे अनीस हाशमी और ताहिरा बेगम, they lived in Karachi and we children lived with our dada dadi in Lahore. Got it? Yeah, Yeah. yeah, 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 तो yeah. बस फिर जब दादी का मतलब उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी, जब ही उन्होंने अम्मी को बुला लिया था कि भाई मैं अब शायद ना रहूं, तो तुम अपने बच्चों को आन के ले जाओ यहाँ से। तो जब हमारी दादी का इंतकाल हुआ है तो अम्मी वहीं थी, कराची वो लाहौर में ही थी। लाहौर में थी तो जी। जी, फिर बस हमने हमारा इम्तिहान वगैरह हो रहे थे, ये हो रहे थे, वो हो रहे थे, तो हमने 1 साल गुजारा वहाँ पर दादा के साथ और फिर हम कराची आ गए। इस वापस आ दौरान हाँ, इस दौरान जब दादी जान वापस आई थी दिल्ली से शादी करके अपने मंझले बेटे की, तो यहाँ पे उन्होंने फिर आन के मेरे ख्याल से 1 डेढ़ साल के बाद छोटे बेटे की भी शादी कर दी थी, हमीद हाशमी की। तो उनकी बेगम भी जो थी वो कज़न थी उनकी, चचा की हमारी। तो बस उनकी शादी हो गई और फिर हम बच्चों को लेके, हम तीनों बहन भाइयों को अम्मी लेके कराची आ गए। और फिर 54 से हम लोगों ने कराची में जिंदगी गुजारी है अभी तक तो। Yeah. I'll just go back. So, ladies, I just want to take a little bit of a so that everybody has clarity. So, this is their grandfather. The two sisters here who are speaking, Idris Hashmi and Amtul Muqeed, are their grandparents, and they have 3 sons. The oldest son is Abida Anis ji's Hashmi. father, Yeah. Ji, and so that's Anis. Then I've my got father. the order wrong here. Then number 2 is Shaila ji's father, who is Hanif. Then number हनीफ 3, Hanif. Hanif? Hanif. हनीफ Hanif. 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 So number Yeah. 3 is the chacha that they're talking about, who is Hamid, who got married to their cousin. This is what they have just mentioned. So the story begins that this is the parents, and ये तस्वीर किसी को याद है ये कहाँ ली गई थी? With your dashing father, Mr. Hashmi, Anis Hashmi. हनीफ, दिस इज आवर हाउस इन कराची। अच्छा. हाँ, What हम a अभी looking नए handsome नए man, I think. नए नए हम जब शिफ्ट हुए हैं कराची, मतलब बच्चे, अम्मी हाँ. अब्बू तो रहते ही थे। हम जब बच्चों के साथ शिफ्ट हुए तो अब्बू जी ने ये वाला घर लिया था, Okay. तो हम इसमें रहते थे। तो अम्मी Ah. रोजाना जब अब्बू दफ्तर जाते थे अब्बू, तो उनको खुदा हाफिज करती थी इस तरह से। So sweet. So romantic. ओके. अच्छा, एक चीज मैं जानना चाह रही थी, अपनी दादी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वो उनकी शख्सियत उन तस्वीर में ही लग रहा है कि शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन. Yeah. डू यू नो अच्छा, एनी, कैन यू हाँ शेयर समथिंग अबाउट योर ग्रैंडमदर? हाँ, मेरी दादी मतलब बहुत ही पावरफुल औरत थी और ये दिल्ली से ही मुस्लिम लीग में काम करती थी। मुस्लिम लीग में नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी में काम करती थी और उसमें उनको भेजा गया था मुस्लिम लीग में कि आप ऑन देयर बिहाफ शी शुड फाइट। खैर वो काम करती रही और उसी तरह से उसी हैसियत में वो लाहौर गई। और अब्बू जी भी हमारे मुस्लिम लीग में काम करते थे और मैया जो थे ही वाज इन कम्युनिस्ट पार्टी।
अब जब ये लोग वहाँ लाहौर आए और वो हुआ तो एक अखबार हुआ करता था, पाकिस्तान टाइम्स, जिसमें जितने भी ये रोशन ख्याल लोग थे, फैज अहमद फैज, सिब्ते हसन, ये वो सब उसमें काम किया करते थे। तो वो मैया वगैरह भी सब उसी में काम करने लगे। फिर उसके बाद 1952 में शायद या 50 में कॉन्स्पिरेसी केस हुआ इन लोगों पे। ये इन लोगों पे ये वो हुआ कि ये सब लोग मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी कॉन्स्पिरेसी कर रही है पाकिस्तान की, ये जो है हुकूमत, रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस कहते थे इसको। हाँ, रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस, यस। हाँ, उसमें फिर ये सब लोग पकड़े गए, अब्बू भी गए, दादी तो नहीं, लेकिन दादा की दुकान सील कर दी गई थी उस वक्त, और चचा को पकड़ लिया था। मतलब हमारे घर में कोई नहीं था कि घर चला सके, और ये कि दुकान भी सील हो गई थी। तो वी अगेन केम एंड स्टूड ऑन जीरो। तो बस अब उसके बाद जैसी भी हमारी जिंदगी गुजर सकती थी गुजारी हम लोगों ने। और उनको किले में दोनों चचाओं, अब्बू को और चचा को किले में बंद किया और उनको बहुत मतलब तकलीफ में रखा, सजाएं दी। फिर उन पे मुकदमा चला। उनको तो खैर इतनी सजा नहीं मिली, दोनों भाइयों को, लेकिन और जैसे फैज अहमद फैज थे, सिब्ते हसन थे, इन लोगों को तो बहुत लंबी लंबी सजाएं मिली। और इन लोगों को बाद में फिर जगह मुख्तलिफ जगहों पे कैद किया गया। तो बहरहाल ये सब हमने तकलीफ उठाई, सब किया, लेकिन अपने मकसद के लिए खड़े रहे कि भाई जो सच है वो कहा जाएगा। और आज तक यही है कि जो सच है वो कहते हैं, और उससे हम नुकसान भी उठाते हैं। यानी कि हमारी वो फितरत तो नहीं गई। अब हमारे बच्चों को वही बात करते हैं, मुखालफत करते हैं, लेकिन एक हंसी मजाक के उसमें कह देते हैं कि भाई हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ये बात कही है, हा 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 हा, या कुछ और लतीफा सुना दिया उनके बारे में। तो भाई सजाएं मिलती हैं हमें उसकी, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही। ये सस्पेंड कर दिया, कि उनको नौकरी नहीं मिली, कि फला नहीं हुआ, फला नहीं हुआ, इस तरह की सजाएं हमें आज तक मिल रही हैं। लेकिन बहरहाल डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं जी। तो। बहुत खूब। और जो मैं हूँ, मैं तो अपना बच्चों को पढ़ाकर और अपना सेटिस्फैक्शन करती हूँ कि जो सच है वो बताओ बच्चों को, और जितना हो सकता है, जितना हो सकता है उतना सच बताओ बच्चों को। और बेटी मेरी एक्ट्रेस है, वो जो सही समझती है उसके मौज़ूआत पे ड्रामे करती है। जी। हमने बीच में एक दस्तक भी बनाई थी ड्रामे थिएटर की, थिएटर कंपनी थी वो, और ड्रामे किया करते थे, और मेरे मियाँ भी बहुत दिलचस्पी रखते थे थिएटर में, तो वो ट्रांसलेशन करते थे। और सबसे पहले उन्होंने जो ड्रामे का ट्रांसलेशन किया था वो था गैलीलियो। तो उसमें भी यही था कि गैलीलियो जो होता है वो सच कहता है, और जो सच को जितना आगे बढ़ाओगे वो उतना ही बढ़ेगा आगे। तो वही काम कर रहे हैं भैया हम तो अभी तक। अब कब तक कर सकते हैं। ड्रामा का सिलसिला तो इस बॉर्डर के इस तरफ भी चलता रहा। इनकी फैमिली का देखते हैं अब, तो इनके बच्चे, तो ये you can look at this photograph. This is Hanif Hashmi and Qamar Azad Hashmi, who I had the pleasure of meeting many times. So we can see that, is this their wedding day, Shaila ji? Yes, yes. ये हमारी दादी हैं और ये आबिदा आपा खड़ी हैं।
तो वो उनकी शादी कराने आई थी और ये तस्वीर उसी दिन खींची थी, दोनों तस्वीरें शादी के दिन उनकी खींची थी। यस, Oh, okay. या And your father was a furniture maker, right? And he designed furniture. Yeah, he did so many things in his life, you know. तो उन्होंने शुरू किया था फर्नीचर में, दिल्ली में शुरू हुआ था। फिर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन पूरा का पूरा जो बिजनेस था वो जस्ट आफ्टर फ्यू इयर्स आफ्टर पार्टीशन वो बिजनेस जो थी सारी कोलैप्स कर गई और बहुत बुरी हालत हो गई कि घर में हम लोग छोटे छोटे थे, मुझे तो कुछ याद नहीं। I was born in 52, but what I have heard and read about my mother and my father's things that खाने पीने का भी अरेंजमेंट नहीं होता था हम लोगों के लिए। एंड एट दैट टाइम हमारे अब्बू को अलीगढ़ बुलाया गया, अलीगढ़ गए हमारे अब्बा कि वहाँ पे कुछ डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो किसी तरह से हमारी फैमिली को जानते थे और उन्होंने कहा, हनीफ को कहा कि तुम वहाँ पे आओ, हमारे अब्बा को कहा, और वहाँ पे तुम काम शुरू करो। तो हम अब्बू जी वहाँ चले गए थे। अम्मा जी अकेली, इतना बड़ा घर था हमारा जिसमें पहले वर्कशॉप भी हुआ करता था, वहाँ अकेली वो रही। 4 छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने किस तरह से रखा, किस तरह से पाला, इट वाज अ नाइटमेयर। एंड देन दे अम्मा जी आल्सो वेंट टू अलीगढ़ विद अस और वहाँ पे जाने से कुछ हमारी अम्मा अब्बा के माली हालात में कुछ फर्क नहीं पड़ा अलीगढ़ में, क्योंकि बिजनेस वहाँ पे पिकअप ही नहीं किया था। पिकअप क्यों नहीं किया था बिजनेस कि वहाँ पे मुसलमान कहते थे भैया कि कम्युनिस्ट से काम नहीं कराना और हिंदू कहते थे कि मुसलमान से काम नहीं कराना, तो चलो खत्म हो गई। सो वहाँ पे बिजनेस जो थी अलीगढ़ में बहुत ज्यादा पनपी नहीं। तो वहाँ पे फिर लेटर ऑन माय फादर ज्वाइंड हिस्ट्री डिपार्टमेंट और वहाँ पे उन्होंने कार्टोग्राफी का काम किया, मैप मेकिंग का काम किया, एक्सकेवेशंस के ऊपर जाते थे वो, वहाँ पे काम किया करते थे। लेकिन ये सारा वक्त जो अलीगढ़ में 7-8 साल हम लोग रहे, 55 में मेरे ख्याल से गए थे, 64 में हम लोग वापस आ गए थे यहाँ पे। सो बहुत ज्यादा तंगहाली का जमाना था ये, बहुत तंगहाली का। यानी हमें याद है, हमारे पास कमाल की बात मैं ये समझती हूँ कि इन स्पाइट ऑफ दैट मच ऑफ पॉवर्टी हम सब भाई बहनों को हमारे माँ बाप ने पढ़ाया, पूरी तालीम दी और कभी हमें मिजरेबल फील नहीं होने दिया कि हम गरीब, तुम गरीब, बेचारे, ये वो। बेचारगी का जो एहसास है, एहसास ही नहीं हमारे अंदर। हमेशा इतनी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनानी, लिटरेचर पढ़ना, कविता, हर चीज नज्म। हम बचपन में घर में ड्रामा किया करते थे, हमारी अम्मा हमें नजीर अकबर आबादी की नज्में सिखा के कुछ छोटे छोटे ड्रामे तैयार किया करती थी और हम परफॉर्म किया करते थे। फिर हम जब अम्मा अलीगढ़ दिल्ली आ गई नौकरी के चक्कर में, तो फिर हम अपने आप किया करते थे। फैज अहमद फैज की कुछ हमने नज्में तैयार की, सर के ऊपर कपड़े बांध लिए और कुछ और तैयार करके सारे मोहल्ले को बता दिया, आप आइएगा हमारे घर, आज हम ड्रामा कर रहे हैं। तो हम बचपन से ये हरकतें की, क्ले मॉडलिंग किया, पेपर कटिंग किया, हर चीज। सो हम लोगों को बचपन से बहुत ज्यादा इस तरह की तरबियत दी गई कि हम क्रिएटिव काम करते रहे और जो जिंदगी है उसको बहुत मजबूती से लेना हमें सिखाया। और हम सबको, मैं ये कह सकती हूँ, 5 भाई बहनों को इस बात में बहुत कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम बेचारे थे। हम कभी भी बेचारे नहीं थे। और हमें जो याद है वो बचपन की इतनी अच्छी बातें याद है सारी, इतना मजा याद है। अभी भी मेरी बेटी भी एक एक्ट्रेस है, तो अभी भी कहती, अम्मा वो वाली कहानी सुनाओ ना, अम्मा वो वाली कहानी सुना दो ना, वो जो आप बताते नाना अब्बा ने क्या किया था, नाना नानी ने क्या किया था। सो इस तरह का चीज जो थी वो हमारे अंदर रही। इन स्पाइट ऑफ वट एवर वी वर डूइंग, we were enjoying that, and ultimate result is that Abida Appa's family and my family, the children have grown up well, they have settled down well, and they are also politically aware of the situation, what happened at that time and what is relevant at this time, what should be done, what should be taken care of. So that is the ultimate इतनी मुसीबतों से, इतने पार्टीशन के जो असरात हुए खानदानों को बिल्कुल चीर फाड़ के रख दिया गया, जिसके अंदर यानी माँ कहाँ है, बाप कहाँ है, बेटा कहाँ है। सो हम लोगों के लिए, हम 5 भाई बहनों के लिए इस तरह से एक अच्छा रहा कि हमारे माँ बाप की शादी ही आफ्टर पार्टीशन हुई थी। सो हमने वो दौर नहीं देखा जिससे आप ही आबिदा आपा जिससे गुजरी है, उस दौर से कुछ तो मेमोरी रही होगी आबिदा आपा के। एंड हमने अपनी दादी को भी नहीं मिले,
यानी मैं दादी को भी नहीं मिली और मैं अपने 6 मामों में से एक भी मामू को नहीं मिल सकी मैं। तो इट वाज नॉट दैट वी कुडंट हैव गॉन, द पॉवर्टी वाज सो मच दैट खाना खाते या तो हम पाकिस्तान जाते मिलने के लिए किसी से। जाहिर बात है कि वी वर देयर एंड वी कुड नॉट मीट आवर, एंड द फर्स्ट टाइम व्हेन आबिदा आपा वगैरह आए थे अलीगढ़ में, तो वी वर वेरी लकी। वो जो तस्वीर है जिसपे पलंग पे हम बैठे, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जी जी वी जी, मेट एनी we will look ब्रदर at एंड that सिस्टर। photo as well. या This one. पहली बार हम मिले अपने भाई बहनों से, लाइक इट वाज अ स्ट्रेंज फीलिंग, इट वाज अ स्ट्रेंज फीलिंग। उसके बाद हम 10 साल बाद दोबारा मिले। पर एक बात मुझे बहुत अच्छी सी मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी मेरे ख्याल से 8-10 साल पहले आबिदा आपा से जो बड़ी बहन है हमारी खालिदा आपा, ये और आबिदा आपा किसी शादी में यहाँ आए थे, और मैंने और खालिदा आपा ने बात शुरू की। ऐसे हम मिले जैसे कल से तो बात कर रहे थे बैठे हुए, ये लगा ही नहीं कि यार इतने वक्फे बाद हम मिल रहे हैं और कोई दरार है कोई, यानी इट वाज स्पॉन्टेनियस, बोथ ऑफ अस स्टार्टेड टॉकिंग एंड वी नेवर स्टॉप्ड टॉकिंग एंड ट्राइंग टू कैच अप। सो इतना ज्यादा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट वी हार्डली मेट एंड स्टेड टुगेदर ऑल आवर लाइव्स, but there's so much of proximity in ideas, in heritage, in lot of things which we share Yes, heritage। तो हमारी थी ना, हमारे अब्बा बिल्कुल. भाई थे। Yeah, it was like that। Yeah, Okay, so let's move on. This is yeah, your grandmother with your chacha, and yeah, Hamid Chachi. is your chacha. yeah। Chacha and Chachi. Yes, Ala. चाचा एंड चाची की, हाँ, yeah, ji. This So is Lahore. this is in Lahore. Okay. Hmm. And this is the chacha you were mentioning, who actually in the beginning was working of. आपने बताया था ना आबिदा जी कि वो लाशें उठाने का काम कर रहे थे, है ना? जी जी। जी. फिर So उसके this बाद this story झंझोड़ की रखने वाली स्टोरी थी ये. But let's move on, and this is what happens with Qamar Azad Hashmi, and your father is here in the middle, and all the Yes, children. yeah, Shaila ji, are you 5 the of us। person at the back with that Yeah, bow? yeah, 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 yes. Me standing, then in front of me is Sabiha, my eldest sister, and then in my father's lap is Shabnam, and Sohail is sitting looking on the other side, and Safdar is sucking his thumb, sitting next to my father। Okay, all Yeah, right. Okay, yeah, so एक एक कहानी आपने मुझे बताई थी शैला जी कि आपके जो ग्रैंडफादर की दुकान hmm. उसका नाम कैसे पड़ा? या दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सी हुआ ये था कि हमारे दादा जो थे वो उन्होंने मेयो कॉलेज लाहौर में आर्ट की ट्रेनिंग लिया था, पढ़ाई की थी बीए पे, और उसके बाद वो तिमारपुर दिल्ली में आर्ट के टीचर थे। सो अब हुआ ये कि काफी समय के बाद बच्चे बच्चे उनके बड़े हो गए थे हमारे दादा के, तो उन्होंने फैसला ये हुआ कि नौकरी को छोड़ना है। अब नौकरी छोड़ेंगे तो बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से? तो वो उनके एक दोस्त हुआ करते थे, उनका नाम था मिस्टर वर्मा। तो मिस्टर वर्मा और हमारे दादा ने ये फैसला किया कि भाई हम एक फर्नीचर की बिजनेस शुरू करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने जमीन वगैरह देखी, जगह देखी, और कश्मीरी गेट में चाबीगंज में एक सुल्तान सिंह की हवेली के पीछे एक जगह थी, काफी बड़ी जगह, वो जगह ले ली गई, जिसके लिए जाहिर बात है पैसे कहाँ से आते, तो हमारी दादी का जेवर जो था वो लगा उसके अंदर, और वो बेच के वो जगह लिया गया और वहां पे काम शुरू किया गया। तो जब तक ये काम शुरू होने की बारी आई, वर्मा जी का इंतकाल हो गया। सो अब हमारे दादा जो थे उनके वो बहुत गहरे दोस्त थे, और हमारे दादा ने कहा चाहे कुछ भी हो, इस बिजनेस में मैं अपने दोस्त का नाम जरूर रखूंगा। तो अब किस तरह रखी, किस तरह वर्मा के साथ हमारा सरनेम सईद था सब लोगों का, तो सईद किस तरह से जुड़ेगा इसके अंदर? तो फैसला हुआ कि सरनेम को क्यों ना बदल दिया जाए, हम हाशमी कर लेते हैं। तो वर्मा हाशमी जो है वो बड़ा जच रहा था, तो दुकान का नाम कर दिया गया वर्मा हाशमी। तो हमारे दादा सईद से अपने आप को इदरीस हाशमी लिखने लगे, और फिर तीनों भाइयों ने, तीनों बेटों ने भी अनीस हाशमी, हमीद हाशमी, हनीफ हाशमी, ये भी हनीफ हो गए। सो इस तरह से हम सईद से हम हाशमी बन गए, और हम के यानी हमारे अब्बू के बच्चे, हमारे ताया के, हमारे चचा के, हम सब लोग हाशमी बच्चे हैं।
सो हम और हमारे अब खानदान जहाँ पे भी जो भी है उनके सरनेम, लेकिन हम सब जो बच्चे हैं चचा के, ताया के और हमारे अब्बू के, हम सब हाशमी बच्चे हैं। और इस तरह से हमारे एक बहुत अच्छी दोस्ती की वजह से, खानदानी यानी हमारे दादा की और उनके दोस्त वर्मा जी की दोस्ती की वजह से हम लोगों के खानदान का नाम बदला और हम हाशमीज बन गए। दिस आई थिंक दिस रियली टचेस मी, दिस स्टोरी, and I think it's a beautiful story in the context of today's circumstances. Yes. So let's move on. And so this is to the left is your uncle, the chacha, Yes. 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 Hashmi. Yeah. Hanif Hashmi. Hamid or Hanif? This With with specs. specs. Is With Hanif respect Hashmi? is Sohail Saab's father, no? Yeah. 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 Your father. Yeah. Ji. Yeah. And then I Chacha. can clearly see a resemblance between Safdar Hashmi and him. Yes. Yes. Very strong resemblance. Yeah. And So this I is your never chacha. met my Chacha, so I think Abida Appa will tell you something about Chacha. Yes, please tell Yes. us something about him. You are right that he resembles Safdar Hashmi. This much. बहुत ज्यादा मिलते हुए। और he was a journalist. He worked for इमरोज। यहाँ पे एक अखबार निकला करता था उर्दू का, इमरोज। तो उसमें न्यूज एडिटर थे ये, और इनकी रात की ड्यूटी होती थी और रात भर काम करते थे और सुबह सवेरे आया करते थे ये। उस जमाने में कोई कंप्यूटर नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तो वो सब कातिबों से वो न्यूज लिखवा कर चिपका कर और ये करके वो करके पूरा अखबार तैयार करके प्रेस को दे के फिर घर आया करते थे ये। तो फिर उसके बाद जब मैंने बताया कि वो मेरी दादी का इंतकाल हो गया, इनके साथ रहते थे हम लोग, चचा, दादा, दादी और हम बच्चे। तो जब हमारी दादी का इंतकाल हो गया और हम लोग चले गए कराची, 54 में गए हम, और वहां जाते ही 1-2 महीने के बाद एक साहब हुआ करते थे अयूब, जनरल अयूब, जिनकी हुकूमत आ गई थी हमारे यहाँ। तो उनके जमाने में मार्शल लॉ लग गया और हमारे अब्बू को गिरफ्तार कर लिया गया और यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए लाहौर लाल किले में, और मैया को भी गिरफ्तार कर लिया, दुकान को भी सील कर दी। तो मैंने जैसे बताया था कि कोई जरिया नहीं था हम लोगों का भी, हमारा और शहला का खानदान एक ही था। बार बार वो मुश्किलात, लेकिन हमारी दोनों जो घरों में खवातीन थी, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इनकी वालिदा तो पढ़ी लिखी थी, लेकिन मेरी माँ पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन हुनरमंद थी। उनको सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना पकाना ये वो बहुत अच्छा आता था। तो उन्होंने क्या किया कि भाग दौड़ करके, अच्छा उस मुश्किल के जमाने में कोई साथ नहीं देता है, तो हमारे अब्बू फ्रीलांस काम करते थे अखबारों में, उन्होंने उनके पैसे वैसे नहीं दिए, तो हमारी अम्मा ने फिर भाग दौड़ करके बच्चों के कपड़ों का ऑर्डर लिया और उन्हीं से एडवांस भी लिया, जिन्होंने ऑर्डर दिया उन्हीं से एडवांस लिया और वो कपड़े सी के उनको देती रही। और इस तरह से कोई अब्बू जी को उस वक्त उस साल उनको कोई 1-1.5 साल की कैद हुई थी किले में, तो बस वो उससे घर चलाती नहीं। फिर उसके बाद 58 में फिर एक दफा गिरफ्तारियां शुरू हुई और ये हुआ इन लोगों को। अब कैसे ये हुआ कि मेरे अब्बू को नहीं पकड़ा, अनीस हाशमी को नहीं पकड़ा, हनीफ हाशमी को पकड़ लिया। हमीद और है हमीद हाशमी, हनीफ
हामिद हाशमी को, हाँ चचा को। हाँ, हाँ, और इस तरह से कुछ बचत हो गई कि एक घर का फर्द जो है वो बाहर है, यंग फर्द। तो फिर मैया ने अब्बू जी ने घर संभाला दोनों। एक टांग उनकी लाहौर में होती थी, एक टांग उनकी कराची में होती थी। तो इस तरह से गुजर बसर हो रहा। तो सच टाइम्स। बहरहाल अच्छा, इस बहरहाल तस्वीर के बारे में बात करते जी। बहरहाल ये hats off to the women, Hashmi women. They were very great. और कंटिन्यू टू बी सो। हाँ, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हार नहीं मानी, हार नहीं मानी, मेरी माँ ने कभी हार हार नहीं नहीं मानी, मानी, कभी हार नहीं मानी, कभी नहीं मानी। एग्जैक्टली। और ना ही हम लोगों की कभी पढ़ाई छूटी, ना हमारे कुछ और वो हुई। और दूसरा ये कि हालांकि वो औरत पढ़ी लिखी नहीं थी मेरी माँ, लेकिन ऐसे चेक करती थी हमारा होमवर्क जैसे वो बड़ी पढ़ी लिखी है। और बाकायदा कहती थी, भाई डायरी में यूं उंगली रख रख के कहती थी ये होमवर्क नहीं हुआ हुआ तुम्हारा, ये होमवर्क नहीं हुआ हुआ। मैं कहती थी अम्मा आपको क्या पता मैंने किया या नहीं किया? कहती मैं सब जानती हूँ, तुमने ये नहीं किया, ये करके लाओ। तो बहुत मजे की खातून थी वो भी। तो बहुत बहुत अच्छा अम्मी के साथ भी वक्त गुजरा। और अब्बू तो हमारे गाने वाने भी बहुत गाया करते थे। अच्छा, हमेशा गाते थे, हमेशा, हाँ, ऑलवेज सिंगिंग। हमेशा। तो जब हम हमारे कराची, अब्बू भी हमेशा गाते थे, या हाँ, हमेशा गाते थे, या जब हम कराची आए तो ये इस घर में हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, जिसकी आपने तस्वीर देखी, इसमें बिजली नहीं थी। तो अब्बू जी कोई मगरिब के वक्त घर आ जाते थे, नहाए धोए, खाना खाया और बाहर सीढ़ियों पे बैठ गए। और वो पंकज मलिक के और इसके और उसके सैगल के, फिर फैज अहमद फैज की गजलें, इतना गाने गा सुनाया करते थे। और जब सोने का वक्त हुआ तो कहा अच्छा भाई जाके सो जाओ, हम सो गए। और फिर सुबह 4 बजे हम जगा देते थे, नीचे आई जमीन रिमेम्बर पर दैट। गद्दे वद्दे बिछाकर सब कुछ करके और उठा देते थे, क्योंकि हम आफ्टरनून शिफ्ट में जाते थे पढ़ने के लिए, मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं जाते थे। तो बस भाई अब तुम लोगों का पढ़ने का वक्त हो गया, उठो और पढ़ो बैठ के। बस फिर हम उस वक्त पढ़ा करते थे। और फिर अब्बू जी दफ्तर चले जाते थे, हम लोग तैयार होकर स्कूल चले जाते थे। ये कहानी थी Such हमारी। memories, such beautiful memories. Okay, Shaila ji, will you briefly talk about this particular photo? This was a picture, I think my Amma and Abuji decided that children should go and meet their family. So I think 68 में हम लोग पाकिस्तान गए, फर्स्ट टाइम हम लोग पाकिस्तान गए। तो पहले ये आए थे 59 में, फिर हम 68 में हम लोग वहां गए, जब मैं आई थिंक आई हैड एंटर्ड 8th क्लास और समथिंग। आप ही तो मुझसे 6-7 साल बड़ी हैं। सो हम वहां गए तो वी वर एब्सोल्युटली मैड, थोड़े बड़े हो गए थे हम लोग, और पता चला था भाई बहन ताया ये सब क्या चीज होती है, ये पहली बार हमारी समझ में वाकई आना शुरू हुआ था। तो हम लोग सारा दिन कुछ ना कुछ ड्रामे किया करते थे। तो ये आबिदा आपा और ये मेरी तस्वीर हमारे भाई ने शायद खींची थी, खालिद भाई ने, और इसका नाम रखा था दो गुंडे। तो ये तस्वीर जो है तब से मेरे पास है, एंड आई रियली लाइक दिस पिक्चर, बोथ ऑफ अस लुकिंग लाइक टू गूंज। Beautiful. Yes. Beautiful. Okay, so I am going to bring us back and I'm going to ask you a few questions about how you feel. What is. Okay, we are back. About? Okay, so how do you feel कि आप लोगों की लाइव्स एकदम अलग अलग हैं, बट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट सेम ही चल रही है। डजंट मैटर वेयर यू आर, व्हिच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर, यू आर डूइंग ऑलमोस्ट दिस, योर चिल्ड्रन आर डूइंग द सेम थिंग्स, you've gone through the same experiences,
So ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. Is it something to do with family or what is it? Please. एक ही कीड़ा है. दिमागी कीड़ा, ये सही बात है कि दिमागी कीड़ा जो था दोनों खानदानों में एक ही था, तो वो कीड़ा जिधर ले जाता गया उधर चलते रहे सब के दिमाग और वही करने में लग गए. बट आई थिंक आई डोंट लाइक, मुझे लगता नहीं कि इतने दूर है. जब छोटे थे, हमें याद है कि जब हम पाकिस्तान गए थे इस टाइम, तो अपने कुछ कजन से हमारी काफी गर्मा गर्मी होती थी कि तुम लोगों के यहाँ तो सुई भी नहीं बनती, तुम बाहर से मंगाते हो, हम तो ये भी करते हैं, हिंदुस्तान में ये भी होता है. उस टाइम हम लोग लड़ा करते थे इस तरह. बट बड़े होकर वो चीजें खत्म होगी. उस समय हमें काफी होता था कि हाँ हमारे हिंदुस्तान में ये जहाज भी हम बनाते हैं, हम फलाना भी करते हैं. बच्चे थे तो हम ये बातें किया करते थे. बट अब बड़े होकर वो बातें नहीं होती. पर लगता है सो मेनी मोर सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑल ऑफ अस एंड बेसिक ह्यूमैनिटी. बेसिक लोगों में जो जरूरियतें हैं, उनकी जो उनकी पसंद है, जो उनकी समझ है, वो तो एक ही है, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो. दे आर टुगेदर and to grow and to develop our relations, we have to be, I think, more together than away from each other as nations. Yeah. नहीं, असल में मसला ये है कि हमारे बुजुर्गों की ट्रेनिंग एक थी. दादी हमारी पॉलिटिकल थी और तीनों भाई पॉलिटिकल थे. मतलब अनीस हाशमी, हमीद हाशमी, हनीफ हाशमी. चाहे हम लोग कितना भी दूर रहें. अच्छा, और ये कि अब्बू की और अम्मी की शादी प्री पार्टीशन थी, तो अम्मी पे भी कुछ थोड़ा बहुत वो रंग चढ़ा हुआ था, पॉलिटिक्स का रंग चढ़ा हुआ था. और उन्होंने अपने बच्चों की उसी तरह से तरबियत की जैसे अब दादी जान ने अपने बच्चों की थी. और हमारी यहाँ जो बातें हुआ करती थी, हमने कभी, आपको शायद ताज्जुब हो कि मैंने और मेरी बहन ने कभी गुड्डा गुड़िया नहीं खेला. हम लोगों के क्या खेल होते थे कि हम तीनों, पहले हम सिर्फ 3 भाई थे, बहन भाई थे. छोटा वाला भाई जो है मुझसे 14 साल छोटा है, तो वो तो था ही नहीं. तो तीनों बहन भाई हम मीटिंगें किया करते थे. जैसे जो कुछ हमने देखा, हम मीटिंगें कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, कुर्सी पे खड़े होके मुख्य दिखा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, ये वो. तो इस किस्म के हमारे खेल हुआ करते थे. तो वो जाहिर है, और ये लोग भी उसी में पले बढ़े, उसी माहौल में पले बढ़े हैं कि इन लोगों को आज़ादी थी कि बाहर निकले, इनकी मीटिंगें हो रही हैं ये. और मेरी जो दादी थी वो यहाँ पे पाकिस्तान जो वो थी तरक्की पसंद खवातीन की अंजुमन जो थी, उसकी प्रेसिडेंट भी थी वो. तो वो पॉलिटिकल काम करने के लिए बाहर जाया करती थी. तो वो सब, चाहे बच्चे वो उसमें इन्वॉल्व हो ना हो, लेकिन ये कि उन पे असर रहता है और वो उनके बच्चों के दिमाग में वो बातें रहती हैं कि भाई हाँ ये सही है, ये गलत है, इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से नहीं करना चाहिए. और फिर पढ़ने लिखने के लिए किताबें, ये वो सब वही चीज मुहैया होती थी कि अदब जो है वो भी वही मिल रहा है हमें जो इन्होंने पढ़ा होगा. जो किताबें इन्होंने पढ़ी होंगी वही किताबें हमने भी पढ़ी, वही अफसाने हम भी पढ़ते थे, वही अफसाने इन्होंने भी पढ़े. तो इस तरह से वो एक सब बच्चों पे वही इम्प्रेशन और वही दिमाग में क्लैरिटी है कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसी तरह से जाहिर है फिर काम करते हैं. और मैं ये बात मैं बताना भूल गई कि हमीद हाशमी जो इमरोज में काम किया करते थे, न्यूज एडिटर थे, उनका इंतकाल एयर क्रैश में हुआ था. वो अखबार की तरफ से मिस्र में कायरो में ये PIA की, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की नई सर्विस चली थी. तो उसमें से यहाँ से वो जर्नलिस्ट को और आर्टिस्ट्स को और उनको सबको फर्स्ट फ्लाइट में ले गए थे. और उसमें बेहतरीन क्रू था, PIA का भी और वैसे भी
जो पाकिस्तान का बेहतरीन जर्नलिस्ट था वो थे उसमें, आर्टिस्ट थे उसमें, और भी बहुत सारे लोग थे उसमें, डॉक्टर्स थे। तो ये तो उन्होंने वो गए थे और उनका उसमें इंतकाल हो गया था। या तो ये हमारे ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी outspoken and great man. He was a great man. तो समझे हमारा तो वो इन बच्चों का तो नहीं, लेकिन हम तीनों बहन भाइयों का, अनीस हाशमी के 3 बच्चों का, तो ज़्यादातर वक़्त उन्हीं के साथ गुज़रा मैया के, क्योंकि हम उन्हीं के साथ रहते थे। फिर बाद में आए मैं अब्बू जी वगैरह के पास। तो इट वाज़ अ ग्रेट शॉक फॉर अस। और बस, और क्या बोलो तुम अब? मैं तो अभी तो टाइम है, अभी खत्म करें। हाँ, हाँ। या शगुफ्ता? शैला जी, would you like to say something? Would you like to share something more? या एक मैं छोटी सी बात, बड़ी प्यारी सी बात है, वो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी अम्मा जब पाकिस्तान चली गई थी तो 1 साल ही रही वो। तो हमारी बड़े अब्बू के खानदान से तो उनका मिलना होता था, पर पहले वो उनकी शादी वादी नहीं थी, पर क्योंकि जानते थे तो मिलती रहती थी। तो आबिदा आपा और आपी वगैरह सब उन्हें फुप्पो बोलते थे, बुआ। हाँ, सो इन लोगों ने सारी जिंदगी हमारी अम्मा को कमर फुप्पो बोला, बट देवर चाची, पर देवर नोन एज कमर फुप्पो। हमारी अम्मा सारी जिंदगी इनकी कमर फुप्पो रही, क्योंकि हमारी अम्मा इनके फादर को आका भाई बोलती थी। सो ये सब उनको फुप्पो बोलते थे। These were very sweet little things, which you like to share with people. Yeah. So there's lot of there's a lot of other things. एक मैं और बात बताना चाहती हूँ, हमारी दादी जो थी, जो मैं मिली नहीं उनसे, लेकिन वो जो वुमेन्स एसोसिएशन की बात कर रही थी, उसकी वो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करती थी। दिल्ली में भी हुआ करती थी। हाँ, जब यहाँ दिल्ली में थी। और भी बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन टाइम हमारे पास लिमिटेड है। इट्स अनलाइक बहुत आपने मुझे एक बात बताई थी, वो बॉनफायर में कपड़े जला दिए थे। Yeah, that I will tell you. So what happened is, हमारी जब दादी की शादी हुई तो 14-15 साल की उम्र में हो जाती थी शादी, और दादा भी शायद 17-18 साल के होंगे। तो नई दुल्हन आई घर में, तो हमारे जो दादा के बड़े भाई थे मौलाना अहमद सईद, तो उन्होंने बहू को, अपनी छोटी भाभी को उन्होंने बताया कि भैया पॉलिटिक्स हमारे घर में क्या है, और हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ हैं, और हम अंग्रेजी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। तो अच्छा होगा कि अगर तुम अपने शादी के और बरी के और दहेज के जो सारा कपड़ा है वो हमें दे दो, हम उसकी होली जलाने जा रहे हैं। तो हमारी दादी जान ने अपने सारे कपड़े जो थे, जो बाहर के विलायती कपड़े जो सिले थे जहेज में, वो उन्होंने उनको पकड़ा दिए और वो उनकी होली जला दी गई। सो उस दिन के बाद से टिल द लास्ट टाइम मिनट शी वॉज वेयरिंग खादी। खादी का वो कुर्ता पहनती थी, लच्छे का वो गरारा पहनती थी, और मलमल के दुपट्टे को कलफ लगा के रंग के अपने हाथ से पहना करती थी। हर लाइफ काढ़ के all her life she did not touch any other thing. That was the commitment of that young girl. And also at that time, Dadi Jan, young bride, and she took a decision to move out of old Delhi. और तिमारपुर में जाके बस गई। ये एक अनहोनी बात थी कि एक नई बहू और पूरे यानी अपने मियाँ को लेके वो शहर से बाहर जाके बच गई। सो ये कहानियां उस जमाने के लिए बड़ी अनहोनी थी, और लोगों की समझ में नहीं आता था कि इतनी बहादुरी इस बच्ची के अंदर कैसी आई कि ये वहां जाके अपने मियाँ के साथ शहर के बाहर रह रही है। बट दैट वाज माय दादी, शी वाज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड शी डिड इट, and that is why I think this side of the family grew up very differently, and we were different. The offsprings of these 3 brothers were slightly different from the family which was left in Old Delhi.
Yes. एक्सटेंडेड फैमिली। एक बार Yeah. दादी को देख लेते हैं दोबारा। देखिए Yeah. कितनी शानदार तस्वीर है। आई थिंक इट्स अ बहुत ही ब्यूटीफुल। शानदार है। या बहुत देखिए खद्दर पहना हुआ है इन्होंने, बिल्कुल मलमल पहना हुआ बिल्कुल है। या तो बिल्कुल। so powerful, she is so और powerful and elegant. और अपने कपड़े खुद सीती थी। Yes. हाँ Yes. और पता है, इनक्रेडिबल। मैं एक बात और बताऊं कि ये बहुत मोटी थी, बहुत मोटी थी। लेकिन भाई ये औरत सारे घर के काम खुद करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, खाना पकाती थी, सबके खाने अलग अलग, क्योंकि हमारे चचा और दादा जो थे तो चले जाते थे दफ्तर, उनका खाना पका के अलग टिफिन में बंद करके रखती थी। वो टिफिन वाला आता था, जैसे आपके यहाँ भी आता है डिब्बा, डिब्बे वाला आता होगा, खाने जो हम्म लेके जाते हैं दफ्तरों में। हाँ 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 आते हैं। तो हाँ हाँ, वो बंद करके जाती थी और फिर उसके बाद ये पॉलिटिकल काम करने चली जाती थी। फिर 3-4 बजे वापस घर आती थी। फिर शाम का खाना, क्योंकि उस जमाने में फ्रिज वगैरह तो था नहीं, तो शाम का खाना फिर पकता था। और हमारे दादा भी माशाल्लाह से बहुत चटोरे थे, उनको तरह-तरह के खाने, बहुत तरह-तरह के खाने चाहिए होते थे। तो उनका दादा का एक किस्सा सुना है कि हम 59 में जब आए, हम्म दिल्ली, जब हम 59 में दिल्ली गए हम्म दोबारा से ना, जी तो फैमिली हमारी, मैं, हमारे अम्मी और हम तीनों बच्चे, हम लाहौर हम्म पहुंचे। तो हम्म हमें देख के बहुत खुश हो गए और कहने लगे कि वो, अब आप हमारी अम्मी से कह रहे हैं ये हमारे दादा, कि अब आप आ गई हैं तो वो कुछ मिठाई विठाई का सिलसिला हो जाए। तो अम्मी कहती है जरूर हो जाए, आप चीजें ला दीजिए, मैं पका बना दूंगी, क्योंकि उसके फौरन बाद बकरीद थी। तो वो खैर चलेगा दुकान। अब वहां हाँ से खोया, खोया ना मिले उन्हें, तो अच्छा वहां एक रसीद आई छोटी सी लिखी हुई, किसी के हाथ भेजी उन्होंने, कि मैंने खोए के लिए कुएं में बांस डलवा दिए हैं, यूं ही हाँ मुझे मिलेगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा, आप अपनी तैयारी पकड़े रखिए। this is दादा और जान, this is a और रोजाना उनकी ख्वाहिशात जो थी ना वो बढ़ती चली गई, कि आज ये पक जाए, आज वो पक जाए, आज धमका चल चीज पक जाए। और इसी तरह से जब चचब्बा हमारे यहाँ आए पहली दफा हाँ पाकिस्तान, तो न सलाम न दुआ न कुछ, दरवाजे से चीखते चले आ रहे हैं। हमारी अम्मा को वो भावज कहते थे, अच्छा भावज भावज, वो वाली दाल पकाना, निखरी निखरी सी, जो तुम निखरी निखरी सी दाल दाल पकाती थी वो पकाओ। ये हमारे अब्बू की बात कर रही है ना, तुम्हारे अब्बू अब्बू की, की हमारे अब्बू की बात। That's beautiful। I tell you. really, they were all और so देखिए कैसे कहानियां कितनी जनरेशंस तक ये सुनाए आप। आई होप आपके बच्चे भी ये सुनाए कहानियां। लेट्स सी व्हाट योर मदर एंड फादर लुक लाइक। आबिदा जी, दिस इज देयर वेडिंग डे। I don't know, this is before partition, I don't know anything. ब्यूटीफुल यंग कपल, हाँ, वेरी young वेरी। couple है। एंड लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंस। दिस इज अ वर्कशॉप आई थिंक। इतना सब लोग कुर्सी पे बैठे हैं, सब बच्चे अपनी मदर के नहीं नहीं साथ। नहीं नहीं, नहीं ये नहीं, हमारी फुप्पी का घर है, दरी पे पीछे बैठे हुए हैं। ये इसमें ओल्ड दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली में किसी घर की तस्वीर है यहाँ, हमारी अच्छा फुप्पी की। हाँ ओके, आई एम गोइंग टू पुट दिस पिक्चर। अब ये बताइए, ये सब बच्चे हैं यहाँ पे। आई कैन सी yeah, I'll ये tell you, this is Sohail is sitting in the हाँ hat, and Ammaji's gob is Sabiha, sorry, Shabnam, and next to Ammaji is Abida Appa, हाँ and I'm standing in front of me is my Taiji, and next to Taiji's face, little face, is Abida Appa's elder brother, sister. sister Khalida. And then is my father. In my father's lap is Safdar, and हाँ then Khalid Bhai, Abida Appa's elder brother, and in Khalid Bhai's lap is sitting my elder sister Sabiha. ओके ओके Yeah. लवली। हाँ
This is the time when they visited India, or this is the time when you had gone? नो, दिस No, इज they इंडिया, when अलीगढ़। they came to, ये अलीगढ़। अलीगढ़ की है ये तस्वीर, या अलीगढ़ की। अलीगढ़ में निशात कोठी में ये तस्वीर खींची थी, और आई थिंक चचा जान ने खींची थी, चचा अमीरुल्लाह चचा ने खींची थी ये तस्वीर। यस यस। All right. Well, I don't know what to say. Should we end the session or should we Yeah, continue? I think we should. We can wind up now. We Yes. can wind up. Okay. So, Yeah. I don't know what to say because I feel अहमर ने लिख के बहुत भेजा सारे है। लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं इन सब अहमद चीजों। क्या लिखा है? अहमर ने लिखा है कि कॉन्स्पिरेसी केस को डिस्कस करें डीपली। जी। नहीं, वो आप करेंगे, मेरे पास वो डिटेल्स नहीं होंगे, आप कर लें तो ठीक रहेगा आबिदा आपा। अच्छा, कॉन्स्पिरेसी केस ये था कि जब पाकिस्तान बना तो यहाँ के जाहिर है ये लोग जो थे थ्रू गए तो उसमें एज अ मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग, लेकिन दे वर डिप्यूटेड इन मुस्लिम लीग by Communist Party. So they were all members of Communist Party, and वो जो थे अपने ज़हीर, नाम था उनका यार, ज़हीर व्हाट, बन्ने भाई जिनका नाम था ना, बन्ने भाई। हाँ, बन्ने भाई was the chief of this party in Lahore. So they were मीटिंग कर रहे थे ये लोग। बहरहाल ये लोग को उनके बावर्ची ने पकड़ लिया। बावर्ची जो था he was the informer, जो वहाँ पे जहाँ पे मीटिंग हो रही थी उस घर का बावर्ची था, वो इन्फॉर्मर था, और उस सज्जाद ज़हीर नाम था उनका। तो वो जो थे उनको बावर्ची ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि जी ये आप नहीं कर सकते यहाँ। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जला रही थी, वहाँ कोई खातून थी, उनका वो जला रही थी कोई डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने कहा आप ये नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा क्या तुम कौन होते हो? हाथ उनका झटका, ये किया वो किया, और वो उन्होंने फिर बावर्ची ने ये कहा, अपना कार्ड निकाल के, आईडी कार्ड निकाल कर कहा कि जी मैं तो फलां फलां अफसर हूँ और आप लोग अंडर अरेस्ट है सब। तो सर वो वहां से ये लोग शायद भाग गए या क्या हुआ बहरहाल, और फिर सज्जाद ज़हीर जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए। फिर उसके बाद एक साहब थे आबिदी साहब, जो मेरा दामाद नहीं शाहिद, उसके मामू। मुझे याद नहीं है इन लोगों के नाम, पर मेरे पास है कहीं ये इन्फॉर्मेशन राइट नाउ। सो इस वक्त जो पकड़े गए थे ना, उसमें फैज साहब भी पकड़े गए थे, और बाद में फिर इसमें इसी के अंदर बाद में बड़े अब्बू को और चचा जान को लाहौर से पकड़ लिया गया था। अब हुआ ये था कि चचा जान और बड़े अब्बू को तो मेरे ख्याल से कुछ अरसे बाद छोड़ दिया गया था, लेकिन सज्जाद ज़हीर और एक साल के बाद और बन्ने भाई वगैरह को 4 साल के बाद इन लोगों को रिहा किया गया था। लेकिन कुछ और था। यस, और इनको यस इट इज करेक्ट। और ये जो है चाचा उनको फैज अहमद फैज को और सिफ्ते हसन को, इन पे तो बाकायदा मुकदमा चला था इन लोगों पर। यस, और इन लोगों को काफी लंबी सजा हुई थी, और 4 साल की हुई थी मेरे ख्याल से। और फिर हैदराबाद भी भेज दिया था, मतलब हैदराबाद यहाँ के पाकिस्तान वाले हैदराबाद सिंध, तो वो सब था। तो उसमें भी इन लोगों को बहुत तकलीफें दी गई थी सभी को। एक कोठड़ी में बंद कर देते थे, वहीं पे बाथरूम भी था, वहीं पे खाना पीना भी था, सब था, और सिर्फ दिन में एक दफा सफाई होती थी उस कोठड़ी की। अगर उसके बाद आपने वहां पे
कुछ शिट किया है या सॉफ्ट किया है तो आप उसी में बैठे रहें रात तक, दूसरे दिन तक। फिर नेल्स में उनके सुइयां चुभोते थे। ये चचा के करते थे ना, हमीद चचा के साथ होता था ये, आई रिमेम्बर। हमीद हमीद के भी और अनीस साहब के भी। अच्छा। और रात रात भर सोने नहीं दिया जाता था। और अ, अ, फिर सिगरेट नहीं पीने देते थे। फिर एकदम से सिगरेट दे दी और कोई सवाल पूछ लिया कि ये क्या हुआ था, वो क्या हुआ था। और उनको ये पता चल गया था हमीद हाशमी को टिंडे पसंद नहीं है, तो उनको रोजाना रोजाना टिंडे पका के भेजते थे वो। अब खाओ या ना खाओ, बहुत दिनों तक तो बेचारे ने खाना ही नहीं खाया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं खाऊंगा तो कैसे जिंदा रहूंगा। फिर आखिर उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से तकलीफ देते थे वो लोग। और अम्मा जी से कहा करते थे, बुढ़िया तुझको तो बागा के उस पार फेंक देंगे हम। तो पागल। और जो चीजें पकड़ के ले, मतलब छापे पड़े थे हर जगह। हमारे घर से भी चीजें उठा के ले गए थे, सूटकेस और ये और वो, तो डॉक्यूमेंट्स तो हमें पहले से तैयार कर दिया गया था। अब आप जो कह रही है ना कि ये सब बच्चों की तरबियत एक जैसी कैसे है, तो अब ये देखिए ना, हमारी दादी ने हमारी तरबियत ऐसे की कि हमें बता दिया कि बेटे वहां पे अगर आपको अपनी चीज कोई नजर आए तो आप उसकी तरफ देखिएगा भी नहीं। और ये लोग पूछे ये किसका है, क्या है, आपने कभी इसे देखा है, तो साफ इनकार कीजिए, हमने तो कभी देखा ही नहीं, हमें क्या पता क्या है। तो इस तरह से वो बच्चों से भी इन्वेस्टिगेट। अच्छा, तुम लोग तो उससे गुजरे नहीं। हमारे यहाँ जो था, कलई करने वाला जो आता था बर्तनों में, वो वो भी इन्फॉर्मर से। था। वो भी इन्फॉर्मर था। पान वाले की दुकान थी, एक केबिन था बाहर, अ, हमारी जो कोठी सी थी उसके बाहर जो गेट था, वो इन्फॉर्मर था। मैया के बाल काटने के लिए जो आता था ओहो। नाई, वो इन्फॉर्मर था। और उसके अलावा कौन कौन ओहो। इन्फॉर्मर होगा ये पता नहीं। तो मतलब जब ये सब सियासी गिरफ्तारियां होती हैं, सब ये होता है, तो ये सब होता। और जब हम कराची में आए तो था कि हमारे बाहर चबूतरे पे आन के एक साहब बैठ जाते थे और वो जिना कैप पहने हुए होते थे। तो मेरी अम्मा ने कहा कि बेटे ये जो साहब बैठे हुए ना, ये सीआईडी के आदमी हैं और बातचीत मत करना अगर ये कोशिश करें तुम लोगों से बात करने की। तो फिर पता चला वाकई बाद में कि वो सीआईडी के आदमी थे। तो इस तरह से वो यू आप पीपल हैव गॉन मच मोर, यू नो। हमें ऐसी तरह की कोई चीज याद नहीं है कि नहीं, हमारे क्योंकि घर यानी, या चचा आप। वगैरह तो उसके बाद सियासत में रहे नहीं ना। हाँ। हमारे तो दादा दादी, या तो चचा चचा और या अब्बा, ये तीनों सियासत में रहे या और एक्टिव रहे। एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, इसलिए ना हमारे यहाँ इस तरह का हमें कोई वाकया नहीं है। एक आध बार याद है कि सरिया हमारे यानी वर्कशॉप की और सब सामान की इतनी गुर्बत थी, यानी बिल्कुल बिजनेस फेल हो गई, तो कुर्की हो रही थी। कुर्की होने के लिए अब्बू जी थे नहीं घर पे, कुर्की करने वाले घर पे आ गए एक तांगे पे बैठ के। तो सब यहाँ बहुत बड़ा सा घर था हमारा, उसी में वर्कशॉप थी, उसी में हम रहते हाँ, थे। पीछे छत थी नहीं, दरिया वहां का दानपुर कंपाउंड का घर। तो यानी छत वत तो थी नहीं, हम लोग सारे में भागे फिरते थे अकेले। अम्मा शायद अलीगढ़ दिल्ली आ चुकी थी नौकरी के लिए, तो वो कुर्की करने वाले आए। तो सभिया ने देखा तो उन्होंने पूछा कि आप कौन है? कहने लगे हम कुर्की कर रहे हैं तुम्हारे घर के सामान की, तुम्हारे अब्बा ने पैसा नहीं दिया। तो सबिया जी भागती हुई अंदर आई, उन्होंने मच्छरदानी के डंडे हम सबको पकड़ाए और कहने लगे आ जाओ बाहर जल्दी से। और हम छोटे छोटे, अपनी पंजी पकड़ी है, किसी ने फ्रॉक पकड़ा है, किसी के बाल खुले में, और लेके हमने डंडे मारना शुरू किए। एंड आई रिमेम्बर यक्का था, वो तांगा भी नहीं था, यक्का। उसमें भाग भाग के वो लोग किस तरह चढ़े और हम लोग उनके पीछे डंडे मारते हुए। और हमारे घर के पास एक तमंचे का कारखाना था, वहां के लड़के ही कर रहे
और हमने उनको मार पीट के भगा दिया। शाम को अब्बू जी आए तो हमने उनको बताया कि अब्बू जी वो आपका सारा सामान कह रहे थे कि हम ले जाएंगे, हमने उन्हें मार के भगा दिया। तो हमारे साथ ये वाकया हुआ था बचपन के इस तरह। Yes. और So a जो lot of things which you today you remember and you laugh, but when you were passing through them, they were not maybe they were very very painful. yeah. वेरी ये पेनफुल। बहुत अगर मैं कहती हूँ कि हमारे घर की औरतें इतनी स्ट्रांग ना होती तो हम बच्चों को Things would have been different. Yeah, वी वुड हैव बीन डिफरेंट। मैं ये समझती हूँ कि अम्मा जी ने जिस तरह से कश्मीरी गेट का टाइम गुजारा, जब अब्बू जी नहीं थे, अब्बू जी काम की तलाश में घूम रहे थे और न खान घर में कुछ नहीं था, किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को पाला, खिलाया, पिलाया, नहलाया, धुलाया, कैसे किया होगा। घर की लाइट कट चुकी थी, पानी कट चुका था। व्हाट वाज दैट लेडी डूइंग हु वाज sort of, if I use the word inverted commas, ruling that whole area with 150 to 200 carpenters. And then she was selling the nails, कीले बेच के उस घर का वो बच्चों को सब्जी खिला रही थी। टूटी हुई कुर्सी में 2 कील लगा के उसे बेच के उससे वो हमें दाल रोटी खिला रही थी। She was the same woman who was there with 150, 200 carpenters and every day guests, 10, 15, 25 guests on the table. So how she was such a strong woman that she waded through the whole thing, and we are there to we are the result of what she did, what my father and what my mother did. That's why we today we are educated and we live a happy life. दादा जान क्या एक लतीफा और सुनाती हूँ जी कि वो अब बंद भी कर देते, टाइम काफी हो रहा है, इसके बाद आप ही। हाँ शी इज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। हाँ वो दादा जान जो थे बीच में कुछ ऐसा वक्त भी आया था कि ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, ये नहीं था, वो नहीं था। तो अम्मा जी ने कहा, वो क्योंकि वो पॉलिटिकल थी और बड़ी इन्फ्लुएंशियल थी तो बहुत सारे लोगों को जानती वानती थी, तो उन्होंने किसी साहब का पता बताया अब्बू जी को, वो दादा जान को, और कहा कि तुम इनसे मिल लेना और कहना मैं बेगम हाशमी का मियाँ हूँ। तो उन्होंने जूं का तू जाके उनसे कह दिया, जाके सलाम दुआ की और कहने लगे जी मैं बेगम हाशमी का मियाँ हूँ। इस सिलसिले में मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। Amazing sense of humor, amazing sense of humor these people have. सबके सब एक से एक बढ़िया थे। तो अच्छा, एक अहमद की फरमाइश और है कि वो मैं कहानी सुनाऊं कि वो हमारे यहाँ जब छापा पड़ा, जब ये कॉन्स्पिरेसी केस का वो हुआ था, कॉन्स्पिरेसी केस, हाँ, तो उस वक्त सारे ही लोगों क्या छापे पड़ रहे थे, हमारे घर में भी छापा पड़ा तलाशी वाशी लेने के लिए, तो वो जो थे वो हमारे बैग्स टटोल रहे थे। I remember this one. This is beautiful thing. Yes. तो जब मेरे स्कूल का बैग खोलने लगे वो, तो मैंने कहा क्या देख रहे हैं आप इसमें, हमने कोई बम वम नहीं छुपा के रखा हुआ है। इसमें कोई एटम बम है। तो they were so amused कि इतनी सी बच्ची जो है वो भी ऐसी बातें कर रही है बम की और इसकी और उसकी, कि हमने ये चीज नहीं छुपाई हुई अपने बैग में। और मेरे ख्याल से अगले दिन ये अखबारों में आया था कि ये मुझे याद है कि हमें अब्बू ने बताया था कि ये अगले दिन अखबारों में छपा कि अनीस हाशमी की छोटी सी बेटी ने कहा कि इसके अंदर क्या मैंने एटम बम रखा हुआ है, रख लो तुम, ले जाओ मेरी। Imagine. Okay, now we can wind up, huh? Yeah? Yes. I think that lots of people have been asking you to write a book, which I should inform that Sheila ma'am is already on. Like she's, आपकी book almost खत्म हो गई. Yeah. Still, yeah. So really, my book is this conversation says
so many people have enjoyed this conversation. It reminds them of their family and so many things. So I would say before we leave, we should all say no that we should connect with our family members more often. Maybe the lockdown and the COVID has taught us that to connect with our family members and to find Yes. these. हर family में कोई ना कोई अलग-अलग किस्से होते हैं. So maybe we can encourage others to also do the same to connect with family members. Yes. Yes. Quite right. So it was Thank you fun. so much. It was really fun, and I really enjoyed talking to Api after such a long time. Api, I'm so happy we could talk. so happy. Wow, how nice. So, How and nice. thank you very much for this milap. बहुत अच्छा लगा. Yes. और शगुफ्ता बहुत शुक्रिया शगुफ्ता. बहुत अच्छा रहा ये. I really enjoyed. Yeah. I'm We will really meet and thankful talk, to yeah. the two of you. And आप लोगों ने मतलब जिस तरह से दिल खोल के बात की और आप लोगों ने मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि आप लोग दो अलग वर्ल्ड दो अलग कंट्रीज में बिल्कुल ही एक तरह से. और जैसे आपने बताया पहले शैला मैम that you meet after so long but you connect so easily. So Yes, because you have yes. so much in common. Because देखिए ये भी हमारे घर की औरतों का मसला था कि जी. औरतों ने इतना जिक्र किया एक दूसरे का आपस में कि भाई तुम्हारी चची वहां रहती है, भाई तुम्हारी ताई वहां पे रहती है, उनके इतने बच्चे, वरना हमें क्या पता होता क्योंकि जी. ये Exactly. अब्बू और चचा अब्बा वगैरह तो अपने कामों में लगे रहते होंगे. तो इन लोगों ने हमें बता के इतना क्लोज किया. और सिर्फ इन्हीं का नहीं, हमारे मामू भी वहीं रहते थे, मामू मुमानी भी वहीं रहती है, उनकी भी फैमिली वहीं रहती है. उनको भी हम उतनी ही अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बस ये है कि उनसे बातचीत नहीं होती है. तो बातचीत नहीं होती है लेकिन उनको जानते उतनी ही अच्छी तरह से हैं. तो Yes. Wow, it was wonderful. So many people are complimenting you ladies. So I think और धन्यवाद जी मैडम, सबके सब बहुत खुश हैं इस conversation से. So I hope we do something more in the future when your book comes out. Oh yes, I'll be Yes. ready. Do something Yes, and yes. ठीक है. और किसी दिन हम लोग Okay. बैठकर बातचीत करेंगे कि आप बिल्कुल. किस तरह से बच्चों को पढ़ाती हैं, हम किस तरह से पढ़ाते हैं. Yes. So I think we should end this session by saying that everybody, since the three of us are women here, so the message is that let's raise strong women and let's be strong ourselves. And because this is a story of strong women and the way she brought up, like a strong woman who brought up her family, I want to end this by actually showing a photograph of your grandmother, who I think is the heroine in this, the main person. Yes, your grandmother. Yeah. Oh yes. Yes. I think we should dedicate this to her, to this incredible woman. So thank you again. It was great to have you. All right. It was a fabulous session, wasn't it? So tomorrow at 5 o'clock, so please note the time. Tomorrow at 5 o'clock, Saif Mahmood will be talking to us and he will be sharing about poetry related to freedom and so much more to explore there, isn't it? So have a great evening, everyone. Thank you so much for joining us. Have a great, absolutely fantastic Independence Day. Good night.